These things are very important from the point of view of identifying a research problem. Secondly, nowadays रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग चली आ रही है दैट इज कॉल्ड पब्लिश और पेरिश मींस कि either you publish your research or you perish means if you don't publish your research nobody will know what good things you are doing or what research you are doing. So publishing in good journals which have very good impact factor, journals which have high prestige in terms of H index, SCI rankings and everything, वहां पे जब पेपर्स आते हैं इवेल्युएट करने के लिए एडिटर्स के पास, रिव्यूअर्स के पास, आई एम ऑल्सो रिव्यूअर फॉर 3Q1 जर्नल्स एट प्रेजेंट. तो जो भी हमारे पास पेपर्स आते हैं रिव्यू करने के लिए लोगों के, वेयर वी हैव टू गिव द डिसीजन वेदर टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट और सजेस्ट सम मॉडिफिकेशंस, हम भी यही चीज देखते हैं कि जो रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च प्रॉब्लम है वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने वेल तरीके से लिखी गई है, कितनी वेल डिफाइंड है. सेकेंडली उसमें नॉवेल्टी क्या है. नॉवेल्टी मीन्स व्हाट न्यू यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द फील्ड ऑफ particular topic or field or towards the industry practitioners, and then how you are trying to address that problem. Okay, because what happens is, since all of you are from social science, arts and management faculties, what we work on when we talk about research or what we talk about knowledge generation in these fields, होता क्या है कि हम काफी ज्यादा बार एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स में बात कर रहे होते हैं, एंड वी आर एक्चुअली डीलिंग विद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इन सोशल साइंस. दिस इज व्हाट मेक सोशल साइंस. सो जब हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो वी शुड नो द मैक्रो साइड ऑफ इट एज वेल एज वी शुड ऑल्सो नो द माइक्रो साइड ऑफ इट. माइक्रो साइड ऑफ इट मीन्स we should be very pinpointed in our study. Okay, for example, I was reading one book on educational research. I'll show you the citation at the end of this presentation. In that book there was one example of a very poorly defined research problem and very nicely defined research problem. So they gave a very straight cut, clear cut example, and what they did was, it was written, there was a case that led to that problem. The case was that some students in a particular school were scoring very poorly in their maths exams, and when questioned about it, the teacher said that okay, the students can do math, they can do addition, subtraction. The problem is that when it comes to applied problems like word problems, where you have to read a particular passage and note down things from that, वर्ड प्रॉब्लम्स हम सबने करी है स्कूल्स में. जो होता था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन दे यूज्ड टू टेल अ पैराग्राफ दैट दिस पर्सन bought this many bananas, then he sold this money, how many he's left, these types of problems. So students were performing poor in math because they were not performing good on these types of problems. So when the researchers inquired with teachers, they found that the students were adequate in terms of mathematical training. That means that they can subtract, add. What they were lacking were language skills. That means they were not able to clearly decode what is being said in the problem, and then from that they can apply their mathematical skills. So this was the research problem that they were trying to study. This was the phenomena they were studying, and the research problem was very vaguely put as students are scoring poor in math or students failing at math. So what the phenomena is very simple, that students are doing very poorly in math subject. But as a researcher, since we are interested with the responsibility of generating knowledge, we cannot just say that students are poor in math and call it a day. This is what a bad research question is. Are students bad at math? We are not providing any context. हम उसके आगे और पीछे की कोई story नहीं बता रहे हैं, and we are just making a statement and just putting a question mark in front of it. This is what a bad research topic, or badly defined research topic, or badly defined research questions is. Research question is students bad at math? Question mark, ... No. So from the story that I just told about that research experiment, they found that students were lacking language skills, communication skills, reading skills. Those were weak, because of which they were not able to read the language of the question and decode information from it. So when you try to make some kind of a research, when you try to select some kind of a research topic or a research problem, you cannot just, we as academicians, we build upon the knowledge which is already available. And there is a saying that we always stand on the shoulder of giants, because all the theories that
we study in our masters or bachelor's courses, like very simple things like Maslow's lead hierarchy of theory, to advanced things like theory of reasoned action and other information theories and diffusion theories and everything. These are developed by people, and we take these theories as base, and using those theories as base, we explore other phenomena that can be explained using these theories. So what happens is, when you are writing a research question or a research problem, when you are defining a research problem, it is very important that you should know a little bit of before and after of the subject. It should not be completely blind. For example, I am strictly a management scholar. If somebody comes and says to me, okay, write a paper with me in economics, I might accept the invitation. मैं उस invitation को accept कर लूंगा, because management and economics में more or less the concepts are same, but the implementation and the intention is quite different in both the subjects. तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, instead कि I just jump in and make a fool of myself. तो यही चीज यहाँ पे भी imply होती है. When we are saying our students bad at math dot dot dot, it's a very ignorant statement. But when we say what are the factors that contribute towards students faring better or worse in math, question mark. Second question, if we write, are cognitive skills correlated to scoring better at math dot 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 question mark. Now you see the first question narrowed down the research topic a little bit, and the second question pinpointed it straight away. Okay, so just let me share you some screens. Sorry, I don't actually use PPTs because sometimes PPTs they become very boring. Just let me share my screen actually. सर स्क्रीन शेयर डिसेबल हो रखा है क्या? नो सर, नो सर. सर जस्ट 1 minute, just 1 minute. सर वॉइस ऑफ है आपकी. हेलो, इज वॉइस कमिंग नाउ? हाँ, यस सर. ओके, मैं जरा एक्चुअली स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा था. सॉरी फॉर द इंटरप्शन एक्चुअली. जस्ट अ मिनट. Students does reading and writing abilities affect math scores? Second, the third example was, do cognitive abilities related to reading and writing affect math, correlate with math scores of students? So you see, as we move from the first example to the third, we are articulating, means we are pinpointing the research question, means what are we interested in studying,
what are the variables that will be involved that we will be studying, and how these variables we think are related. For example, I said cognitive abilities, reading and writing, correlated with math score. Okay, the language, as you see, is becoming more and more, scientific jargon oriented instead of being, as simple. The reason being that we want to be precise, because when you write a paper or when you commit yourself to a thesis for 5 years, you need to have a very, good plan of action so that you can work on that in that particular period of time. Because the thing with research, if you are doing research at PhD level, it's not that you have to just do research, you will have to also develop a lot of other skills that will help you in conducting research. So that's the main thing, that's the main issue that many people face, that we have to pick up other skills and we have to manage our time. So the research problem should be very precise so that you can dictate your precise time to that and not waste anything. Secondly, if your research problem is very, very articulated, very, very well done, many times you will have to go to progress report meetings with your SRC or your RDC, and they will review your progress, what are you doing. So if your research topic is very, very laid out, you can clearly show them what progress you have made from last time or till this time. Or even if progress is stuck, you will be in a position to explain to them why this current position is being stuck or why it is taking more time. That I'll discuss at the end when we'll wrap it up as a bonus tip. So defining a research topic is very, very important. And secondly, when you go for publication, as I told earlier, publications, editors, reviewers, they view your paper or they weight your paper based on the weight of the research topic. Weight means what are you contributing to the theory and what are you contributing to the practitioners. Okay, so now let's start with research topic. So what are the common sources from which students or research scholars or even researchers get their research topics from? Now, since here we are talking about social sciences and particularly management and other allied subjects, so since most of our problems and most of our theories try to explain day-to-day life of people instead of very, niche phenomena, we try to explain day-to-day life like behaviors and motives, and we try to quantify phenomena into some theory and all those things. So in short, I can say all our research topics come from a very a space which is very close to us, that is our society, our community, or our nation. So the thing with defining a research, this leaves a social science researcher with lots of research topics to pursue in each and every direction. Okay, and it is very, very tempting. Most of you who are faculties who have taught in colleges at master's level or graduate level, you may notice this type of enthusiasm in students जब project report की बात आती है. When at master's level, I think project report technical degrees में तो है ही, MBA में it is compulsory. So when I used to teach before my postdoctoral, I used to ask students कि अब प्रोजेक्ट का टाइम आ रहा है तो व्हाट रिसर्च टॉपिक आर यू टेकिंग अप. दे यूज्ड टू बी वेरी एंथुसियास्टिक, सर ये कर लेंगे, हाँ सर स्टॉक मार्केट में ट्रेंड्स एनालाइज कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, एंड स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स कर लेंगे. कोई स्टार्टअप्स पे करना चाहता है, कोई माइक्रो फाइनेंस पे करना चाहता है. बट व्हेन आई यूज्ड टू आस्क देम कि जैसे अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट में करना है और तुम ट्रेंड्स एनालाइज करना चाहते हो, डू यू नो कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, या कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं और कैसे उन ट्रेंड्स को एनालाइज किया जाता है, पिक किया जाता है. मींस डू यू हैव सम काइंड ऑफ बैकग्राउंड नो हाउ अबाउट दैट. जो स्टूडेंट्स होशियार होते थे वो क्या करते थे कि वो टाल दिया करते थे, वो कहते थे सर 2 दिन बाद बात करते हैं, वो पढ़ के आया करते थे. और जो मतलब ऐसे ही मार रहे होते थे कि हाँ सर थोड़ा गाइड कर देंगे, वो थोड़ा सा जैसे बोलते हैं बैक पेडल करके कोई आसान सा टॉपिक उठा लिया करते थे. तो द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, जो कि मैं पहले भी कह रहा था, कि थोड़ा सा जो आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है उनके बैक और फोर्थ आपको पता होना चाहिए. तो द फर्स्ट सोर्स फ्रॉम विच द रिसर्च टॉपिक कम्स इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. हम लोग सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. आई थिंक कुछ लोग इकोनॉमिक्स के होंगे यहाँ पे, कुछ साइकोलॉजी से होंगे, कुछ मैनेजमेंट से होंगे, मीन्स ऑल सोशल साइंसेस. And everybody
all of us have some particular area of interest when it comes to selecting a research topic. Okay, so जो area of interest होता है, I think that is the first go to or should be your go to when selecting a research topic. Okay, the thing with selecting any other research topic is that when you have particular area or particular interest, you try to follow that area. Okay, and when you develop a research problem when from your own instincts from the area that you follow, it becomes very easy to pursue further, because it becomes second nature to you, instead ki somebody else makes you sit down and gives you a research problem. So area of interest is something that you should pin down. And by area of interest, I means areas which you are passionate about, as well as you have some knowledge also. Because as I said earlier, when you propose some research problem or research topic, at least have some know-how of the before and afters of that topic. So if you are passionate, you follow that topic relentlessly or routinely, you will have some in out of that topic, and you will be able to get the most of it and select a particular topic. Okay. Now the after area of interest, another area which yields a large number of good research topics and problems to social science researchers are common issues. Common issues means, for example, I work as a management scholar, so the common issues might be the issues which industry faces in conducting their business. For example, I am working on business sustainability since 2012. And the most common issue that I noticed that when I was probing these issues very deeply during my postdoctorals at IIT Roorkee, I found that businesses find it very difficult to strike a balance between being sustainable and being profitable. This is the reason, means कि या तो धंधा कर लो या environment की care कर लो. You cannot do both. This is the common perception, or this is the common limiting factor that stops businesses. So I did research. बट देर आर कंपनीज, आप देख सकते हो आजकल कंपनीज हैं ऐसी ऐसी जो कि बिजनेस भी कर रही हैं, धंधा भी कर रही हैं और सस्टेनेबल भी हैं. दे आर डूइंग सस्टेनेबल थिंग्स आल्सो. बट हाउ इज दैट पॉसिबल? व्हाई इट इज नॉट कमिंग हियर इन इंडिया? सो आई वेंट टू वर्क ऑन दैट. So that was some common issue that was very much present in the Indian industry ecosystem, that sustainability and profitability cannot go hand in hand. So I explored that. Now आपके उसमें भी जो भी आपका field of study है जैसे economics है या sociology है, psychology है, there might be some common issues which the practitioners face in your field. Practitioners means people who practice, like economists or psychologists, all these people who practice their craft on a daily basis. So for us managers, it is the industry people who are managers, and for all these you guys, these are economists, psychologists, all these people. So what are the common issues they are facing? It might be a very simple issue. For example, in psychology, psychometry is a very big field. Psychometry means you get the subject to fill up the questionnaire, and on the basis of the questionnaire, you evaluate whether they fall into a particular type of what you say mental illness or something, because I am not very much in tune with that, but I use psychometry for behavioral economics and management study purpose, so I know the basics of it. But there is one thing called diagnostic and statistical manual of mental disorders, something like of that. You have scales or questionnaires in that type of manuals. And what psychiatrists and psychologists do, they ask people to fill up that questionnaire, and on the basis of that, they evaluate whether you are, depressed or anxious or something like that. So these are the things that psychometry, and these are the things. So what happens is sometimes all these questionnaires that you find in these books, like diagnostic and statistical manual, sometimes they have some limitations also. Okay, and these limitations are very well identified by academicians, people who do research and publish papers on these phenomena, as well as by industry professionals such as psychiatrists and psychologists. They also sometimes pinpoint that, okay, this instrument lacks something that needs to measure whether this person will be in this category or that category. So these are the concerns, common issues that practitioners in your area raise. And even, just revisiting a particular questionnaire to make it more robust or, redo it can constitute a very good research topic or a research problem. Okay. So these are the, common issues or common, things
जो कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं आपकी फील्ड के वो डे टू डे फेस करते हैं। और इसलिए थोड़ा सा मतलब इंडस्ट्री एकेडमिया एक इंटरफेस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड फॉरेन रिसर्चर्स को इस चीज का बहुत फायदा होता है एज कम्पेयर टू अस इंडियंस, कि उन लोगों का इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस बहुत अच्छा होता है। सो दे आर एबल टू स्पॉट प्रॉब्लम्स एंड डू रिसर्च इन एडवांस एंड गेट पेपर्स जो कि बिल्कुल नए नए, जैसे बोलते हैं नई थ्योरीज होती है, नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो नेचुरल सी बात है, जितनी नई थ्योरी, नया कॉन्सेप्ट, जो चीज जितनी पहली बार पब्लिश होती है, इट गेट्स साइटेड अ लॉट। अगर जैसे आप लोग अगर बुक्स की बात करें हम लोग, तो जैसे एक बुक आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी की फॉर मास्टर्स लेवल पीपल कॉल्ड इट्स ऑथर्ड बाय सीआर कोठारी। ओके, इट्स गेट्स साइटेड अ लॉट, क्योंकि वो हर कोई जो स्टार्ट आउट कर रहा होता है रिसर्च में वो उस बुक को पढ़ता है, क्योंकि वो एक फर्स्ट ऑफ अ काइंड ऑफ अ बुक थी जो कि इंडियन मार्केट के लिए आई थी। तो द थिंग इज, द फर्स्ट ऑफ अ काइंड ऑफ अ थिंग जो भी आती है वो सबसे ज्यादा साइट होती है। तो more you find out these kind of problems, more novel the research topic is, more novel the research problem is, the thing is वो उतना ज्यादा साइट होती है, एंड दैट इंक्रीजेस योर पॉपुलैरिटी। और पॉपुलैरिटी इंक्रीज होने से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन विद दैट इन एकेडमिक्स। आपको टेन्योर मिल सकता है, यू गेट ग्रांट्स, प्रमोशंस एंड एवरीथिंग। ओके, सो कमिंग बैक, ये रिसर्च टॉपिक और रिसर्च प्रॉब्लम आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से आ सकती है, वो सब्जेक्ट एरिया जो आपको बहुत पसंद है आप उनको फॉलो करते हैं। सेकंड, जो कॉमन इश्यूज मींस जो प्रैक्टिशनर्स हैं आपकी फील्ड के, और चाहे एकेडमिशियंस हो चाहे वो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस करते हो, उनके जो कुछ कॉमन इश्यूज हैं, क्या आप उनको स्टडी करके कुछ उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं? दैट कैन बी अ स्टडी। एंड लास्ट इज टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड way of finding a research topic, that is detailed literature review. Detailed literature review with meta analysis. Detailed literature review combined with meta analysis. Now what detailed literature review combined with meta analysis does, now this type of identification of a research topic and problem is very clinical in nature. Okay, most of the time when we talk about identification of research problems in hard sciences like engineering and medicine and math sciences, usually the identification of research topic or problem usually first of all starts with the detailed literature review and meta analysis. Now what I mean by detailed literature review or meta analysis, see, these are the three ways, but these ways are not mutually exclusive, means you cannot just pick one and go with it. You have to use a combination of these three to make your research topic very very robust, so that it can stand the test of time of 4 or 5 years when you are doing your PhD. And even after that, when you go to interviews for faculty, for being a faculty or getting a promotion, you have to able to justify that area that you have picked up, how much steam it had when the time आप जब उस PhD कर रहे थे और जब अब आपकी PhD खत्म हो गई है, then what has changed, क्या developments हुई, क्या इसमें अभी further work हो सकता है आगे, because PhD the time is limited, the money is limited, so you have to do limited work, you cannot do everything. So उसके बाद भी आपके पास जो work बचा हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो what happens is कि when you combine all these three approaches, तब आपका रिसर्च टॉपिक बहुत रोबस्ट हो जाता है। बट इसमें जो मेजर वेरिएंस जो है, वेरिएंस मींस जो मेजर चीज जो हमारी सबसे ज्यादा मदद कर सकती है, वो डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू विद मेटा एनालिसिस है। नाउ व्हाट डज दिस डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू मींस? देखिए क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि कॉमन इश्यूज जो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट पॉइंट में, वो एकेडमिशियंस के भी हो सकते हैं और आपकी इंडस्ट्री में प्रैक्टिशनर्स के भी हो सकते हैं, है ना। एकेडमिशियंस के कॉमन इश्यूज ये हो सकते हैं कि समटाइम्स क्या होते हैं कि दो कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं पैरेलल में, जो कि एक दूसरे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका। और एकेडमिशियंस ये देखना चाहते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट बेटर है, वेदर दिस कॉन्सेप्ट इज बेटर और दैट कॉन्सेप्ट इज बेटर, और उन दोनों के बीच एक रेस सी लगी हुई होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ थ्योरी को अप्लाई करके कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं, दूसरा जो स्कूल होगा वो अपनी सेट ऑफ थ्योरीज को लगा के कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर देगा, एंड देन दे सी हाउ डूज दीज थिंग्स क्या कंसेंसस बनता है दोनों में, क्या कोई एग्रीमेंट है, क्या कोई डिसएग्रीमेंट है, क्या है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसर्च का वो होता है, गोल होता है एकेडमिक रिसर्च का, वो ही होता है कि जो डिफरेंट पैराडाइम्स हैं
उनकी कंपैटिबिलिटी या डिसकंपैटिबिलिटी को स्टडी करना। पैराडाइम्स मतलब कि किसी प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए अगर आपने दो कंपीटिंग थ्योरीज बना दिया, दो कंपीटिंग कॉन्सेप्ट्स बना दिए, क्या वो दोनों कॉन्सेप्ट्स एक्सक्लूसिव है, मींस कि वो अपने अपने आप में कंप्लीट है, कि वो एक साथ कंप्लीट है, कि वो दोनों के अपोजिंग है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एकेडमिक रिसर्च में, जिसके ऊपर very highly cited papers get published कि what is the potential compatibility between different paradigms or theories. I'll give you one example from one of my own publications that got published in 2020. Can you see the paper? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So what I was talking about, ki how paradigms can be, whether they are compatible, whether they are not compatible, whether they are exclusive, whether they are inclusive. So this paper I published in 2020 from my postdoctoral work, and the title of the paper says Agility and Lean Practices as Antecedents of Supply Chain Social Sustainability. Now you can see in the title of this paper, this is agility and this is lean. Okay, these are two paradigms in supply chain management. Paradigms means approaches or theories, and they are totally poles apart of each other. In some sense they have some overlap. भाई जो मैं भी आपसे बोल रहा था कि क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कि क्या उनके कोई कंपैटिबिलिटी है, उनके इन दोनों थ्योरी, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच भी कंपैटिबिलिटी है, बट रेस्ट ऑफ द टाइम दे आर क्वाइट अपार्ट. ओके, and I picked them agility and lean practices as antecedents of supply chain social sustainability. अब मेरे को ये आइडिया कहां से आया कि इन्हीं दोनों अप्रोचेस को एक साथ देखा जाए स्टडी करके कि इनकी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, कि नहीं है. That idea I got from what you call this literature review. When I did the detailed literature review of this paper, one second. When I did the detailed literature review of this paper, in the introduction, from the introduction section, second paragraph you can read. Okay, I'll just paraphrase it for people if it's not visible clearly. Researchers in the past, this is what I have written. Researchers in the past have studied agile, lean, and sustainable paradigms as separate entities, and researchers have started to explore the potential compatibility between lean and environmental sustainable paradigms. However, the social sustainability pillar is still not given its due attention. There is a lack of understanding about how social sustainability goals can be integrated with established supply chain paradigms like agility and lean practices. The need and importance of integration of various paradigms was first highlighted by Naylor et al. In 1999 in a study on lean agility, integrating lean and agile paradigms in the supply chain management. Therefore, recently a call has been made by Sicolo et al. 2018 to investigate how lean and agile paradigms integrate with the sustainable paradigm. So, as you can see, after reading this whole paragraph, you can see that from the literature of these 4-5 papers, when I was doing the literature review for my postdoctoral, actually in my postdoctoral, we had a very broad research problem, and that broad research problem was exploring the role of different stakeholders in improving supply chain social sustainability. So it was called just different stakeholders. Now there are a lot of stakeholders in any supply chain, right from the people who provide you raw materials, that is your suppliers, to the people who manufacture your product, to the people who warehouse your product, to the people who retail and sell your product, and finally the consumer. And the companies that are involved in selling the raw material to one another and then selling the finished product and doing the retailing, these are called focal companies. Okay, focal companies means companies which exchange goods and value with one another in the supply chain. So the title of the research topic was exploring the role of different stakeholders. It was very, very broad. So in that way, what I said to my professor that we should start exploring this topic one by one. And we said, I said, okay, let us first focus on the managers of the supply chain and the focal forms in the supply chain. Means how do managers are thinking about what is the thought process of managers when it comes to these supply chain social sustainability. So okay, then he said to me, okay, then you want to explore from managers, आप managers की side से वो करना चाहते हो study, तो आप क्या पूछोगे उनसे? Means what will you ask them? कुछ होना तो चाहिए ना पूछने के लिए
कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करो. देन आई सेड टू हिम, ओके सर, अब मुझे यहां तक थोड़ा, अब मैं क्या थोड़ा सोचता हूँ, पहले मुझे लिटरेचर रिव्यू करने दो. आई वेंट बैक, डिड लिटरेचर रिव्यू फॉर 2 months. और वो जो 2 महीने का लिटरेचर रिव्यू था, ये जो पैराग्राफ अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ये पूरा पैराग्राफ उस 2 महीने की मेहनत का सिर्फ जो है निचोड़ है, कि इस रिसर्च प्रॉब्लम को इतना ज्यादा आर्टिकुलेट कर दिया हमने. क्यों? मैंने आइडेंटिफाई किया कि लीन एंड एजाइल और सस्टेनेबल सप्लाई चेन 3 पैराडाइम्स हैं. इनके बीच कंपैटिबिलिटी स्टडी करने के लिए रिसर्चर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कॉल्स करते रहे हैं कि इसको स्टडी किया जाना चाहिए, स्टडी किया जाना चाहिए. किसी ने 2 को मिलाया, किसी ने 1 को मिलाया, किसी ने तीनों को नहीं मिलाया. मैंने वो चीज यहां रेफरेंस में कोट करी कि मैंने तीनों को मिलाया है और मैं उनको मिला के ये इस चीज को करना चाह रहा हूं. अब इससे पहले जो सेकंड स्टेप था हमारा कि कॉमन इश्यूज जो होते हैं इंडस्ट्री में, वो भी इससे एड्रेस हो गया. क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इंडस्ट्री में, इंडिया में वही परसेप्शन है कि या तो बिजनेस कर लो या सस्टेनेबल हो लो. तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि इस रिसर्च से आंसर हो सकता है. तो मैंने उसको भी इसमें यहाँ पे मेंशन किया अगले पैराग्राफ में, है ना. और देखिए, ये सब कुछ लिटरेचर रिव्यू से पूरी की पूरी फाइंडिंग निकल के आई. और उसके बाद हमने देखिए 3 ऑब्जेक्टिव अपने फाइनलाइज कर दिए. टू एग्जामिन वेदर लीन एंड एजाइल प्रैक्टिसेस इंपैक्ट सोशल सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेशन ऑफ फर्म्स, whether they impact social sustainability performance of firms, and to examine the indirect impact of agility and lean practices via all these factors. तो जैसे अभी मैं आपसे पहले कह रहा था कि पुअरली डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम और अच्छे से डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम में क्या फर्क होता है. तो हमने 3 कॉन्सेप्ट्स को, एजाइल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तीनों को एक साथ उनकी पोटेंशियल कंपैटिबिलिटी स्टडी करने की कोशिश करी है. और उसको हमने जस्टिफाई किया है अपने रिसर्च गैप को. रिसर्च गैप मेरे को एक्चुअली लिटरेचर से ही पता चला था, ये मेरे को इंडस्ट्री से नहीं पता चला था. आई वॉज डूइंग लिटरेचर रिव्यू. जब मेरे प्रोफेसर ने कहा कि क्या पूछोगे मैनेजर से, किस टॉपिक पे बात करोगे, तो वही चीज थी कि मैं जब 2 महीना लिटरेचर रिव्यू किया, मुझे को 3 ही अप्रोचेस अलग अलग दिख रही थी. क्योंकि एजाइल सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज काइंड ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट. अभी इसको 1 साल ही हुए हैं आए हुए. इफ यू आर अ मैनेजमेंट स्कॉलर, आई एम सॉरी इफ यू आर नॉट अ स्कॉलर, मैनेजमेंट स्कॉलर, तो आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा. बट जो लीन मैनेजमेंट है, ये काफी पुरानी चीज है. ये 60-70 से डेवलप होनी शुरू हो गई थी. टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम बोलते थे पहले इसको. ये टोयोटा ने बनाया था कि कैसे वेस्टेज को कट डाउन किया जा सकता है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मटेरियल्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड अदर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी. एंड उससे क्या होता है कि इंडस्ट्री अपने आप एफिशिएंट हो जाती है और सस्टेनेबल अपने आप बनने लगती है. जब आप कम पानी खर्चा करोगे, कम बिजली फूकोगे, कम मटेरियल में उतना ही अच्छा सामान बना रहे हो, तो आप सस्टेनेबल बन जाते हो. एजाइल सप्लाई चेन थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है. ये बेसिकली कहता है कि आपको फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने आप को रेडी रखना चाहिए इस पोजीशन में कि आप बहुत तेजी से अपने आप को रिकॉन्फिगर कर सकते हो. तो लीन जो है वो कहता है कि कम से कम रखो, एजाइल कहता है कि तैयारी रखो, और सस्टेनेबिलिटी इन तीनों को मतलब एक तरीके से वो कह देती है कि भाई सब मोह माया है, पोल्यूशन कम करो, है ना. तो इन तीनों को देखो मैरी करने के लिए, इन तीनों प्रोटोकॉल्स को कितनी, ये पूरा जो पैराग्राफ है ये यही कह रहा है कि लोगों ने कितने बार इसको बोला है कि इसको स्टडी किया जाना चाहिए, स्टडी किया जाना चाहिए, स्टडी किया जाना चाहिए. तो मैंने वो पूरा का पूरा ये देखा था कि ये पहले मुझे भी शक हुआ था कि ये तीनों को किसी ने स्टडी नहीं किया है. उसके बाद देन क्या हुआ, मैंने बैक रेफरेंसिंग करनी शुरू करी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन डूइंग लिटरेचर रिव्यू फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज बैक रेफरेंसिंग. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है. बैक रेफरेंसिंग क्या होती है कि अगर जैसे आपने कोई पेपर पढ़ा, ठीक है, जैसे ये नेलर एट ऑल का यहाँ पे पेपर, ये काफी पुराना है. द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस पैराडाइम्स वाज फर्स्ट हाइलाइटेड बाय नेलर एट ऑल, है ना. ये पेपर मुझे कहां से पता चला. द थिंग इज, जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को आर्टिकुलेट करने के स्टेज में होते हैं, तब आपको थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू के बारे में भी लोग सीख रहे होते हैं, तब कि कैसे लिटरेचर रिव्यू करते हैं. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज कि जैसे ये मेरे को एक नया पेपर मिला था, सिकोलो एट ऑल 2018, जो कि ये बात बोल रहे थे कि लीन, एजाइल और सस्टेनेबल पैराडाइम्स को सेपरेट एंटिटीज की तरह स्टडी किया गया है. और वो स्टेटमेंट जब इन्होंने लिखा था तो इन्होंने नेलर एट ऑल का रेफरेंस दिया हुआ था. तो मैंने क्या किया, तुरंत उस पेपर के बैक में गया मैं जहां पे रेफरेंसेस दिए हुए होते हैं, और वहां से इसका पूरा रेफरेंस निकाला और उसको जाकर रीड किया पेपर को. नेलर एट ऑल 1999 से उन्होंने ये बात प्रपोज करी थी इन स्कोप फॉर फ्यूचर वर्क इन हिज पेपर कि इन तीनों पैराडाइम्स को और पैराडाइम्स के साथ मिला के देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने सस्टेनेबिलिटी का एक हिंट दिया था.
तो उस चीज को भी मैंने यहाँ पे यूज किया, कैश किया। सिकोलर ने भी अपने मेटा एनालिसिस पेपर में इस चीज को कैश किया। पीएससी एंड रिच 2015 इन्होंने भी कैश किया। तो आप देख सकते हो कैसे एक सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू जो होता है उसको फिर जो है सब लोग धीरे धीरे करके उसको जो है कैपिटलाइज करते जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम अपना लिटरेचर रिव्यू बहुत बहुत केयरफुली करें और उससे ही हमें काफी आइडिया लग जाएगा अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में। अच्छा, इससे पहले जो हमने दो और तरीके देखे थे रिसर्च प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के, दैट इज एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉमन इश्यूज। ये सिर्फ मैंने कहा था जैसे कि ये सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये सारे एरियाज का आपको, इन सारे अप्रोचेस का आपको मिक्स मैच यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अराइव एट योर फाइनल रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च टॉपिक। क्यों मैंने ऐसा बोला? जब आपका एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या कॉमन इश्यूज आपको पता है और आपने कहा कि ओके लेट अस से माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज मैं कह सकता हूं, मैं लेट अस से अगर आप साइकोलॉजी के हैं या उस सोशल साइंसेस के फील्ड के, वेरी जनरल टॉपिक इज कि यू वांट टू स्टडी दी you want to study the effect of primary schooling education of primary school education on kids. Okay, that very very broad topic. Okay, अब इसको थोड़ा सा आप आर्टिकुलेट भी कर सकते हैं, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, थोड़ा और टेक्निकल बना दो, जार्गन डाल दो उसमें। बट उसके बाद भी अगर आप कोई भी डेटाबेस खोल के देखो तो आप देखोगे, अगर आप यही कीवर्ड्स अभी एग्जैक्ट एंटर करके देखो किसी डेटाबेस में, जैसे स्कोपस डेटाबेस या वेब ऑफ साइंस डेटाबेस है, यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टडीज जो कि सेम यही बात कर रही होंगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, ये वो बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, अलग अलग उसमें वो आ जाएंगे। अब आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना पता है और आपने ये देख लिया कि स्टडीज भी बहुत सारी आ रही हैं, और एक चीज पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि टॉपिक में नॉवेल्टी होनी चाहिए, देन ओनली इट विल गेट इजीली अप्रूव्ड बाय योर रिसर्च कमिटीज और गेट पब्लिश्ड इन पेपर्स। तो अब आप क्या करोगे? अब आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता है, देन यू विल जंप स्ट्रेट टू दिस थर्ड स्टेप, दैट इज डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। अब आप पढ़ना शुरू करो कि व्हाट अप्रोचेस पीपल हैव यूज्ड टू मेजर दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन थ्रू प्राइमरी एजुकेशन। क्या मेजरमेंट में कोई कमी है? अगर मेजरमेंट में कमी है, आप उसको हाईलाइट करो लिटरेचर से, ढूंढो रेफरेंसेस जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है करंट मेजरमेंट पॉलिसी को कि कैसे मेजर करते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस को। आप कोई नया स्किल डेवलप करो, उसको टेस्ट करो, उसको पब्लिश करो, आपका रिसर्च टॉपिक बन गया। एक थीसिस पूरी आराम से बन सकती है इस टॉपिक पर। और ये हमारे मैनेजमेंट फील्ड में भी, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, जो भी हम बिहेवियरल मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं आजकल, उसमें भी सेम यही तरीका होता है। वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर, वी टेक इंटरव्यूज, क्वालिटेटिव का भी सहारा लेते हैं, जैसे कि ग्राउंडेड थ्योरी हो गया। और सिंस आई एम टोटली क्वांटिटेटिव पर्सन, मैं मतलब आई यूज दिस काइंड ऑफ क्वालिटेटिव थिंग्स, बट मैं उसको मैथमेटिकली यूज करता हूँ, जैसे कि टेक्स्ट माइनिंग एल्गोरिदम में उसको डाल दिया किसी के इंटरव्यू को एंड उसके सेंटिमेंट्स निकाल लिए। ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन डू। बट वही है कि जैसे आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, अब उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के पीछे लिटरेचर रिव्यू करके ये देखिए कि अब उसमें नया काम करने की क्या गुंजाइश है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एरिया ना रोड ब्लॉक हिट कर जाते हैं। एकेडमिक्स में क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे होते हैं एंड नॉट एवरी टॉपिक गेट्स सक्सेसफुल। जो थ्योरीज आप आज की डेट में पढ़ते हैं अपनी बुक्स में, जैसे लॉ ऑफ डिमांड हो गया या कॉप डगनस प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन हो गया, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरीज हो गई, ये थ्योरीज क्यों किताबों तक पहुंची हैं? क्योंकि ये एक सक्सेसफुल रिसर्च की ब्रांच थी, जो कि कंप्लीट हो गई और जिसका कुछ आउटपुट निकल के आ गया, और रिसर्च जो कि टेस्ट ऑफ टाइम को भी झेल गई, है ना, अपने लिमिटेशंस के साथ। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी रिसर्चेस होती हैं जो रोड ब्लॉक हिट कर जाती हैं। हमें लगता है कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है, कोई इस पे काम क्यों नहीं कर रहा है, बट कोई अगर काम नहीं कर रहा है तो ये चीज आपको लिटरेचर रिव्यू करने से पता चलेगी कि कोई उस पे काम क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि वो चीज अगर एक रोड ब्लॉक हिट कर गई होगी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, या तो वहां पर टेक्नोलॉजी नहीं है, जो कि साइंसेस की फील्ड में ज्यादा होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, उतना पैसा नहीं होता है हम उस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकें, कि तो वो चीज रोड ब्लॉक हिट कर जाती है। इन टर्म्स ऑफ सोशल साइंसेस कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक बिल्कुल ही इनएक्सप्लेनेबल डेड वॉल में आ जाते हो और वो वहां से उसको ब्रेक आउट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, कभी कभी मतलब काफी रिसर्चर्स के साथ ये होता है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट में टॉपिक तो ले लिया, बट 1 ईयर 1.5 ईयर इनटू द साइकिल, 2 ईयर समटाइम, लोग पता चलता है कि इसमें काम नहीं हो सकता, या इसमें जो काम है वो ऑलरेडी रिपीटेटिव है। एंड देन उसके बाद फिर आपको रिसर्च कमेटी भी फोर्स करती है कि भाई नहीं, इसको बदलो, इसमें नहीं हो रहा है तुम्हारा काम। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए, जब जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट या कॉमन इश्यूज आपको पता चल रहे हैं और वहां से आपको लग रहा है एक टॉपिक बन सकता है, तुरंत अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट और कॉमन इश्यूज को नोट डाउन करिए, उनको नैरो डाउन करिए और उसका लिटरेचर रिव्यू ढूंढना शुरू कर दीजिए। लिटरेचर रिव्यू ढूंढने के लिए आप
स्कोपस या वेब ऑफ साइंस का डेटाबेस अगर आपके कॉलेज में सब्सक्राइब्ड है उसको एक्सेस करिए, अगर नहीं है तो फाइंड सम कोलीग, सम फ्रेंड फ्रॉम मतलब सीनियर जिनके कॉलेज में ये सब्सक्राइब्ड हैं, वहां जाइए, एक दिन स्पेंड करिए। जितने आपके टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो आपको पता चलेंगे। पहले तो कीवर्ड्स मींस वो वर्ड्स जो कि, वो टर्म्स और वर्ड जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड पेपर्स निकाल के लेके आएंगे, जो कि पेपर्स के टाइटल में होते हैं, है ना, वो आपको पता चलेंगे। उससे क्या होगा कि आपको लिटरेचर रिव्यू पता चलेगा, लेटेस्ट क्या चल रहा है इस फील्ड में, मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या जो कॉमन इश्यूज मैं सोच रहा हूँ उनके बारे में लेटेस्ट लोगों ने क्या रिसर्च करी है। क्या पता हम जो सोच रहे हैं वो ऑलरेडी कर चुका है कोई, है ना, कर चुका है, तो फिर वी वोंट, नॉवेल्टी नहीं बचेगी फिर उसमें इतनी ज्यादा, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो होता है रिसर्च टॉपिक बहुत धीरे 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 करके वो होता जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया एकदम से पैदा कर देंगे, बिल्कुल ही जिसने जो किसी ने ना देखा हो ना सुना हो। तो रिसर्च ऐसे नहीं होती, रिसर्च इज एन आइटरेटिव प्रोसेस, मींस यू बिल्ड अपॉन अदर्स। वही जैसे मैं कह रहा था कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई क्वेश्चनर है, उसकी लिमिटेशंस लोगों ने गिनाई हुई है लिटरेचर में कि इसमें ये कमी है, आप कहो कि मैं इस कमी को एड्रेस कर सकता हूं, आप कुछ नया उसमें प्रपोज करो, उसको टेस्ट करो, उसको पब्लिश करो, उसको इवेल्युएट करो, एंड आपका टॉपिक बन गया। सिमिलरली जैसे ये मैंने दिखाया आपको कि मैंने क्या किया था, मैंने इस 3 पैराडाइम्स को जोड़ने की बहुत दिनों से लिटरेचर में बात हो रही थी, मैंने वो काम करके उसका फिजिकल डेटा प्रोवाइड करके एक मॉडल टेस्ट कर दिया, एंड दैट्स व्हाई दिस पेपर गॉट एक्सेप्टेड इन आईजीओपीएम। आईजीओपीएम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के 3 वो जिसे बोलते हैं ना स्तंभ वाले जर्नल होते हैं, उनमें से एक है जर्नल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आईजीओपीएम, एंड वन इज जर्नल ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। तो उन 3 मेजर जर्नल्स में से ये जर्नल आता है ना। आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि इतना बड़ा आइडिया मेरे हाथ कैसे लग गया। सो दिस इज हाउ आई सी दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग a research question, that first of all you have a common issue, you then take that common issue और योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसको नैरो डाउन करिए, उसको नैरो डाउन करना सीखिए। अगर आपको लगता है कि अभी इसको नैरो डाउन नहीं हुआ है, किसी अपने ऐसे फ्रेंड को दिखाइए उसे जो कि सीनियर है आपसे थोड़ा सा रिसर्च में, या रिसर्च परस्यू कर रहा है, डजंट मैटर कि वो किसी भी फील्ड का हो, वो अगर थोड़ा सा भी अच्छा रिसर्चर होगा वो आपका टॉपिक नैरो डाउन करवा देगा। अगर थोड़ा सा मतलब फैकल्टीज को अप्रोच करने में थोड़ा सा वो लगता है, अगर फैकल्टी किसी को आप जानते हैं तो उसको अप्रोच करिए, उससे कहिए कि मैं इस टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ, इसको कैसे नैरो डाउन करूं मैं। नैरो डाउन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और मैं थोड़ा सा मतलब 5 मिनट एक अपना और पीएचडी का एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल इज कि व्हेन आई अप्रोच माय सुपरवाइजर फॉर पीएचडी, आई सेड टू, वो उन्होंने मेरे से पूछा क्या काम करोगे। आई सेड सर मेरे को सस्टेनेबिलिटी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, आजकल सस्टेनेबिलिटी हर जगह हो रही है, और जितने भी बिजनेस रिलेटेड इंडस्ट्री पब्लिकेशंस हैं उनमें भी सस्टेनेबल और ये सब एनवायरनमेंट और कार्बन क्रेडिट्स और ये सब बहुत कुछ आता है। तो मैंने इतने बड़े बड़े वर्ड्स तो बोल दिए, तो उनका भी अब सीधा यही क्वेश्चन था कि सस्टेनेबिलिटी में तो बहुत कुछ होता है, तुम क्या करोगे। मैंने कहा सर मैन्युफैक्चरिंग। कहते मैन्युफैक्चरिंग तो तुम्हारे बस की नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हो, तुम टोटली मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हो। तो अब उस समय बिहेवियरल सप्लाई चेन और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बन रहा था सब्जेक्ट 10 साल पहले आज से, उतना मोशन उसका लास्ट 5-6 सालों में ही आया है, तो इसलिए मैंने उस समय हाथ नहीं लगाया सप्लाई चेन में। तो फिर मैंने कहा सर कुछ कंज्यूमर लेवल पे देख लें, कंज्यूमर्स कैसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो सर ने कहा अब करी तुमने अकलमंदी की बात, कंज्यूमर। मैंने कहा सर कंज्यूमर्स का देखते हैं, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बिकते क्यों नहीं है, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं, क्या रीजन है। तो वैसे तुम सर ने कहा कर सकते हो। तो फिर व्हाट आई डिड इज कि मैंने एक बहुत ही रफ सा प्रपोजल बनाया, जिसमें बस मैंने ये चीज लिख दी थी कि आई वांट टू स्टडी व्हाई पीपल आर नॉट बाइंग। मैंने यही लिखा था उस समय इन 2012, क्योंकि तब आई वाज अ नोविस रिसर्चर। मैंने वही एक पुअरली मेड रिसर्च क्वेश्चन लिखा था, व्हाई पीपल आर नॉट बाइंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। और मैं फिर अपने गाइड के पास लेके गया, तो फिर उन्होंने मेरे को सही कराया कि नॉट बाइंग से मतलब नहीं है तुम्हारा, तुम एक रिसर्चर हो, यू आर डिस्क्राइबिंग कि क्या चलता है दिमाग में लोगों के जब वो एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो जब वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उनके दिमाग में क्या चलता है, वो चलने से वो क्या आउटकम आता है, वो भी एक प्रोसेस है रिसर्च का बताना, बट उसको ऐसे नहीं लिखना होता है हमें। तो ही सेड कि तुम इसको ऐसे लिखो कि क्या मतलब उस समय जब उन्होंने मेरे को बताया था 2010 में, तो उन्होंने कहा था इसको ऐसे लिखो कि व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। मैंने कहा ठीक है।
बहुत अच्छा लगा मेरे को एकदम एक क्लियर पाथ पता लग गया कि आपको ये पता करना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं जब वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदती है। अब वो अफेक्ट किसी भी वे में हो सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। तो वो मेरी वाली पुरानी बात भी उसमें आ जाएगी कि वाई environment and sustainable development volume 6 number 3 okay and अब आप इसमें देख सकते हो टाइटल ऑफ द पेपर है एंटीसीडेंट्स ऑफ ग्रीन परचेज इंटेंशंस अ रिव्यू एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑन इंडियन कंज्यूमर्स। अब आप देखो वो टॉपिक कितना फाइन ट्यून होता चला गया और अब जाके जब वो पेपर छपा 2017 में तो उसकी लैंग्वेज कितनी प्रिसाइज और कितनी क्लिनिकल हो गई। एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या होता है, वो फैक्टर्स जो कि किसी एक फिनोमिना से पहले होते हैं जो कि उसका कॉज होते हैं। तो उतनी छोटे से बड़े से सेंटेंस को हमने एक जार्गन में डाल दिया एंटीसीडेंट्स ऑफ ग्रीन परचेज इंटेंशंस। ग्रीन परचेज इंटेंशंस मींस वही जो मैं कह रहा था, कंज्यूमर के दिमाग में क्या वो डिसीजन मेकिंग चलती है उसका हमने एक साइंटिफिक वहां पे वो डाल दिया। A review and testing of hypothesis on Indian consumers means इस मेरी थीसिस में बेसिकली मैंने बहुत सारा लिटरेचर रिव्यू किया था कि what are the different approaches that people have used to profile environmental friendly consumers। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, बिहेवियरल फैक्टर्स थे, साइकोग्राफिक फैक्टर्स थे, सोशल फैक्टर्स थे, डेमोग्राफिक्स वर आल्सो प्लेइंग अ बिग रोल। सो अब आप देख सकते हो उसमें ये हमने फैक्टर एनालिसिस लगाया था फिर इसके इंस्ट्रूमेंट्स को वैलिडेट करने के लिए। देन वी यूज्ड मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस टू सी कि कौन कौन से फैक्टर्स कितना कितना रोल प्ले कर रहे हैं एंड देन वी हैड द फाइनल रिजल्ट। सो दिस इज हाउ यू डेवलप अ रिसर्च टॉपिक दैट वो ब्रॉड से पहली बात तो वो एक ब्रॉड टॉपिक होना चाहिए। ब्रॉड टॉपिक के बाद फिर आप उसको नैरो डाउन करो, नैरो डाउन करने के बाद देन अगेन यू डू अ लिटरेचर रिव्यू टू सी कि इसमें काम कहाँ हो सकता है। जैसे आई वाज लकी कि मेरे गाइड ने मेरे को 2 बार टोक दिया कि अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में क्या करोगे, इसमें मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारी बस की नहीं है तो तुम इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हो। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज अगर कोई टोकने वाला नहीं है आपके पास तो ये चीज आपके लिए लिटरेचर रिव्यू कर सकती है। लिटरेचर रिव्यू कैन वेरी वेल बी अ थिंग विच विल गाइड यू। आपको आपका वो हाथ सही समय पे पकड़ लेगी कि नहीं इस तरफ मत जाओ, यहां कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो लिटरेचर रिव्यू चाहे आपका टॉपिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट से आए चाहे कॉमन इश्यूज है, उसको लिटरेचर रिव्यू से बिल्कुल फॉलो अप करिए। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब लोग सिनॉप्सिस लेके जाते हैं रिसर्च डिग्री कमिटीज के पास, एसआरसीज के पास, तो जो फर्स्ट 2 मीटिंग्स होती हैं विद योर एसआरसी और विद योर रिसर्च डिग्री कमिटी वो काफी पेनफुल हो जाती हैं लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक होता है ज्यादातर मतलब एसआरसी बहुत नाराज होती हैं कि यार ये तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है, क्या करोगे इसमें, तुम्हें कुछ नहीं पता है। ये मतलब थोड़ा बहुत रूड हो जाता है क्योंकि उनको भी दिन में इतने सारे लोगों को सुनना होता है और भीड़ होती है बहुत ज्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिग्री होती है किसी भी यूनिवर्सिटी की पीएचडी, तो दे आर ऑल्सो अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। तो वो चीज होती है कि फिर वो क्या होता है स्टूडेंट को फिर कहा जाता है कि इसको दोबारा से करके लेके आओ, है ना, अगली बार आना, 6 महीने का उसका फालतू में लटक जाता है। तो वही चीज है कि वो उनको बेसिकली यही देखना चाहते हैं कि क्या आपने इतना होमवर्क कर लिया है कि अब आप कॉन्फिडेंट हो थोड़ा कि इसको परस्यू किया जा सकता है विदाउट एनी मेजर मॉडिफिकेशंस। ओके, माइनर मॉडिफिकेशन थोड़े बहुत हो जाते हैं टॉपिक में, एसआरसी अलाउ कर देती है, बट मेजर मॉडिफिकेशन नहीं अलाउ करेगी वो 2-2.5-3 साल बाद। तो वो थोड़ा सा अश्योर हो जाना चाहते हैं कि आपने इतना होमवर्क कर लिया है व्हेन इट कम्स टू सर्चिंग योर रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च टॉपिक कि आपको थोड़ा सा उसका लिटरेचर पता है कि ये कहां से टॉपिक आया है और अब ये कहां को जा रहा है आगे, इसमें क्या गैप्स हैं, मोटे मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट लिटरेचर रिव्यू विल help you, detailed literature review. And what meta analysis is basically ये होता है, meta means ये मेटा वर्ड बना है मेटा डेटा से। मेटा डेटा मींस डेटा अबाउट डेटा। अगर आपने किसी अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में पहले आपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को नैरो डाउन कर लिया, उसके बाद आपने उसमें पेपर्स ढूंढने शुरू करे और लेटर से आपने कीवर्ड्स डाले, आ गए 300, 350, 400 पेपर आ गए। तो क्या होता है कि आजकल जितनी भी डेटाबेसेस होते हैं, स्कोपस हो गया चाहे वेब ऑफ साइंस हो गया, यू कैन एक्सपोर्ट ऑल द पेपर्स मींस द टाइटल ऑफ द पेपर, ऑथर्स, सब्जेक्ट एरिया, कीवर्ड्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड रेफरेंसेस टू अ एक्सेल फाइल
और उस एक्सेल फाइल में ये 300-400 सारे पेपर्स की वो डिटेल्स एक्सपोर्ट कर देता है। उसके बाद वी लोडेड इनटू अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड वॉस व्यूअर, और वॉस व्यूअर क्या करता है, वो हमें पूरा का पूरा ऑन द बेसिस ऑफ द मेटा डेटा जो कि पेपर में होता है, उसके कीवर्ड्स, वो हमें ना बड़े बड़े उसके क्लस्टर्स बना के दिखा देता है कि कौन कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स एक साथ उन क्लस्टर्स में दिख रहे हैं, कौन से टॉपिक्स बहुत डेंसली पैक्ड है, कौन से टॉपिक्स दूर दूर हैं। उससे क्या होता है कि हमें पूरी की पूरी फील्ड का एक विजुअल वो मिल जाता है, इंडिकेशन कि क्या चल रहा है फील्ड में। ओके, आई जस्ट शो यू वन फ्रॉम वेब, मैं आपको दिखा देता हूं। एक्चुअली दिस इज नॉट माई मेन कंप्यूटर, so that's why a little bit of inconvenience today. My main workstation is actually out of order. Okay, see, so this type of map I'm talking about, if you can see on screen, it is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so Yes, sir. so this is the type of map I'm talking about when it comes to meta analysis. And what they have done is कि इन्होंने क्या किया, कोरोना वायरस के ऊपर जो है मेटा एनालिसिस करके देखा, और जितने पेपर्स निकल के आए, रिसर्च पेपर्स, वही 300-400 पेपर की लिस्ट निकल के आई होगी, उसको इन्होंने, ये वॉस व्यूअर नाम का सॉफ्टवेयर है, ये नीचे आप कोने में देख सकते हैं। दिस इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, इसको आप जितनी मर्जी बार उतनी बार डाउनलोड कर सकते हैं। और यूज करने के बाद ये जो कनेक्शंस होते हैं, मेटा एनालिसिस एक्चुअली इज अ वेरी वेरी डिटेल्ड एंड इंटेंसिव प्रोसेस, तो मैं इस सेशन में तो उसको आपको नहीं दिखा सकता। माइट बी इन सम फ्यूचर वी गेट अ चांस, तो इसके लिए एक्चुअली अलग से सेपरेट 2 घंटे 3 घंटे का आपको सेशन चाहिए होगा टू एक्चुअली प्रॉपरली एनालाइज ऑल दीज मैप्स। और उससे पहले, मतलब मेटा एनालिसिस में स्ट्रेट अवे कूदने से पहले, यू शुड हैव डन सम लिटरेचर रिव्यू मैनुअली आल्सो, जो कि मैंने आपको बताया था ये बैक रेफरेंसिंग के थ्रू, कि कोई भी नया पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें जो पुराने पेपर्स उन्होंने साइट करे होते हैं, प्लीज उनको भी जाके उनकी रेफरेंस लिस्ट में से देखें वो कौन से पेपर्स हैं, और उनको जाके पढ़ें। उससे आपको बहुत ज्यादा उस टॉपिक के बारे में, एक तो जिसे बोलते हैं ना डेप्थ और ब्रेथ, आपकी नॉलेज की चेक करी जाती है जब आप उसमें जाते हो, पीएचडी की किसी भी डिफेंस में जाओगे, या रिव्यू और कमेंट्स आंसर करोगे, या अपनी एसआरसी को आप, या अपनी आरडीसी को आप प्रोग्रेस रिपोर्ट दोगे। टॉपिक तो पीएचडी में बहुत सर्जिकली वो होता है, शार्प होता है, बट उसकी डेप्थ और ब्रेथ बहुत ज्यादा होती है। तो उस टॉपिक की डेप्थ और ब्रेथ वही, वो आपको हमेशा टाइम टू टाइम चेक करेंगे वो लोग, और टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वो बैक रेफरेंसिंग से ही आपको पता चलता है कि ये टॉपिक आया कहां से, और ये टॉपिक में मैं जो कर रहा हूं इसको ये लेके कहां जाएगा। ओके, वो कहीं आप डेड एंड तो नहीं हो जाएंगे। वो सब चीजें बैक रेफरेंसिंग से ही पता चलती हैं। और बैक रेफरेंसिंग से आपको और भी जो टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, जो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को परस्यू करने के लिए जरूरी है, वो भी आपको वहीं से पता चलेंगी। तो दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। नाउ जब आपकी रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, देन उसके बाद नेचुरल सी बात है, आपका एक टॉपिक बन जाएगा, वो है ना, टॉपिक बन जाएगा। मतलब टॉपिक एक जैसे टाइटल ऑफ योर सिनॉप्सिस, और द टाइटल ऑफ द प्रपोज्ड टाइटल ऑफ द थीसिस, और द प्रपोज्ड टाइटल ऑफ योर पेपर, है ना। टॉपिक बना लिया आपने। टॉपिक बनाने के बाद अब हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो काम करना शुरू करने के लिए व्हाट वी नीड इज, अब हमारा जो प्रॉब्लम है, पहले रिसर्च प्रॉब्लम से हमने बना लिया टॉपिक, एंड टॉपिक के बाद अब इस पे काम करना शुरू करने के लिए व्हाट वी नीड इज रिसर्च क्वेश्चंस। वी नीड इज रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चंस मींस कि जो आपका प्रॉब्लम और टॉपिक है, उसको जो आप एक्सप्लोर कर रहे हो, उसमें जो आप एक्सप्लोरेशन करना चाहते हो, वो एक्सप्लोरेशन कौन से ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जिनके बारे में आंसर्स प्रोवाइड करेगी। जैसे मैंने आपको बोला ना कि पीएचडी में जो टॉपिक होता है वो बहुत ही प्रिसाइज और सर्जिकल होता है, बट उसकी जो नॉलेज होती है पीछे की, वो डेप्थ और ब्रेथ बहुत ज्यादा होती है। टॉपिक बहुत छोटा सा होता है, बहुत ही एक माइन्यूट एरिया में, बहुत ही नीश एरिया में आप नॉलेज इकट्ठी करते हो, बट वो नॉलेज की जो वो होती है ना क्वालिटी, वो बहुत डेंस होती है एज कम्पेयर टू जो कि आप मास्टर्स या बैचलर्स लेवल पे पढ़ते हो। तो व्हाट आर द रिसर्च क्वेश्चंस, मीन कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या हैं जो आप आंसर कर रहे हो अपनी रिसर्च से। सो इफ यू लुक बैक एट दिस पेपर, यू कैन सी दैट आफ्टर डूइंग ऑल दिस, लिटरेचर रिव्यू एंड what you say, literature review and all these things, we arrived at the specific research questions to examine whether lean and agile practices impact social sustainability orientation of firms, to examine whether lean and agile practices impact sustainability performance, and how they impact them indirectly.
Sometimes in journals they leave it as objectives, sometimes we leave it as research questions. It goes interchangeably. However, from a point of view of paper, objectives और research questions आप interchangeably use कर सकते हो. But in case of thesis and in case of synopsis, okay, objectives are little broad and research questions are basically how you achieve those objectives. Okay, हर ऑब्जेक्टिव का अपना एक और भी, हर ऑब्जेक्टिव के अंदर 2 या उससे ज्यादा रिसर्च क्वेश्चन भी हो सकते हैं. सो इट्स नॉट लाइक दैट, बट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ रिसर्च पेपर, ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो. फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थीसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे. ऑब्जेक्टिव मींस कि जैसे हमने बोला था कि हम टॉपिक को फाइन ट्यून कर रहे हैं. फाइन ट्यून करने के बाद जो बचा, और लिटरेचर रिव्यू देखने के बाद भी, पहले तो आपने फाइन ट्यून किया, उसके बाद आपने उसका लिटरेचर रिव्यू देखा कि इसमें देखें इसमें काम क्या हो रहा है, कहीं हम कोई डेड एंड तो नहीं हिट कर रहे हैं. जब वो सब चीजें आपने इंश्योर कर ली और आपको पता चला कि हाँ, जो आपकी कंसर्न है, जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपने फाइन ट्यून किया था पहले, लिटरेचर भी उससे एग्री कर रहा है और उस चीज पे काम किया जा सकता है, देन यू अराइव, जो कि अब आप जो काम करोगे मोटा मोटा, नॉट स्पेसिफिक, अ लिटिल ब्रॉड, वो ऑब्जेक्टिव्स में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को स्टडी करना था कि इन माय पीएचडी की कंज्यूमर, व्हाई पीपल आर नॉट बाइंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट, वो धीरे धीरे करके और इंप्रूव होता गया. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग. उसके बाद वो हो गया एंटीसीडेंट्स ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स ग्रीन परचेज इंटेंशंस, फाइनली जो थीसिस का टाइटल था. तो वो कैसे फ्लो हुआ? वो ऐसे ही फ्लो हुआ कि हमने क्या किया कि पहले उसके ऑब्जेक्टिव बनाए. जब वो फाइनलाइज हो गया कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एनवायरमेंट कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. तो हमने क्या किया, उसके अब ये कहा हमने, क्या भाई फैक्टर्स वर्ड लिख दिया, तो हमने कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि कौन से फैक्टर हम स्टडी करना चाह रहे हैं. तो थोड़ा प्रिलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू किया, तो उससे मेरे को पता चला कि एक तो बिहेवियरल फैक्टर्स होते हैं कि आपका जो बिहेवियर है, मतलब आप कैसे यूज करते हो प्रोडक्ट को, क्या आपकी डेली दिनचर्या है, वो सारे बिहेवियरल फैक्टर्स में आते हैं. फिर साइकोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, मींस की आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी वे ऑफ थिंकिंग कैसी है, वेदर यू आर लिबरल, यू आर कंजर्वेटिव, आपकी उसी हिसाब से आपकी वैल्यूज डिसाइड होती हैं, जिससे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बीइंग सस्टेनेबल. फिर सोशल फैक्टर्स. तो ऐसे ऐसे करके फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स अपने बनाए कि हमने लिखा डू फैक्टर्स एट इंडिविजुअल लेवल अफेक्ट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग टुवर्ड्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट. इंडिविजुअल लेवल में बिहेवियरल और साइकोग्राफिक फैक्टर्स आ गए. डेमोग्राफिक भी इंडिविजुअल लेवल पे आ जाते हैं, आपका एज, जेंडर, वो सब होता है. फिर हमने लिखा सोशल अपब्रिंगिंग और सोशल क्लाइमेट अफेक्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. उसको ऐसे करके लिखा. सोशल अपब्रिंगिंग में हमने सोशल फैक्टर्स भी डाले थे, पीयर ग्रुप्स का हमने उसमें वो डाला था एक कंस्ट्रक्ट कि पीयर ग्रुप से कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है टुवर्ड्स डिसीजन मेकिंग. और उसके बाद लास्टली हम लोगों ने थोड़ा लिखा था कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी एडवर्टाइजमेंट, जो सरकार अपने एडवर्टाइजमेंट करती है, कैंपेन्स चलाती है, उनका कितना इफेक्ट पड़ता है. तो हमने लिखा था एक्सटर्नल स्टिमुलाई. अब ये तो बहुत ही ब्रॉड चीज हो गई, इंडिविजुअल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई. अब आप इसको ब्रेक डाउन करोगे, तब फिर जो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस बने थे वो यही बने थे कि हमने, जैसे मेरे सर ने कहा कि अब तुमने ये लिखा ना इंडिविजुअल फैक्टर्स, उन्होंने कहा इंडिविजुअल फैक्टर्स में क्या क्या डालोगे. तो मैंने सर को बताया कि सर मैं लिटरेचर सर्वे किया है, वहां से पता चला है कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपको किसी कंज्यूमर फिनोमिना को या कंज्यूमर बिहेवियर को प्रोफाइल करना है, तो यू नीड थिंग्स लाइक डेमोग्राफिक्स, द बिहेवियरल फैक्टर्स, जैसे कि अवेयरनेस वगैरह कितनी है उस कंज्यूमर सेक्ट्स पर, पर्टिकुलर कंज्यूमर की रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विस. और सेकेंडली थर्डली साइकोग्राफिक फैक्टर्स. तो फिर हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाया कि डू बिहेवियरल फैक्टर्स ब्रैकेट में सच एज अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स अफेक्ट ग्रीन परचेज इंटेंशंस. सेकेंड research question we made, do psychographic factors bracket में we write perceived behavioral control, attitude and subjective norms affect green purchase intentions of Indian consumers. Does social factors bracket में peer groups जिसमें हमने friend and family ले लिया affect green purchase intentions of Indian consumers. So you see, वो ऑब्जेक्टिव एक था इंडिविजुअल का, और आप देखिए उसके रिसर्च क्वेश्चन 3 बन गए. क्यों? क्योंकि उसको हमने बहुत ही फाइन ट्यून कर दिया कि अगर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इन ही तीनों टॉपिक्स पे बात करेंगे, बिहेवियरल, साइकोग्राफिक और डेमोग्राफिक, ताकि हमें कोई इधर उधर घुमाए ना. दूसरी बात, उन्हें पता रहे कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं इस चीज को. वी हैव क्लैरिटी इन माइंड. बेसिकली ये आपकी क्लैरिटी दिखाता है कि आपकी जो प्रोडक्शन है पूरी की पूरी, उसकी क्लैरिटी क्या है, वेदर इट इज ड्रिफ्टिंग ऑल ओवर द प्लेस, कि वो फोकस्ड है. क्योंकि जितनी फोकस्ड होगी उतनी जल्दी खत्म होगी, एंड द मोर
better output you will be able to deliver to the scientific community. Okay, so this is how we proceed to the research question. And research questions ऑब्जेक्टिव के बाद रिसर्च क्वेश्चन है, और रिसर्च क्वेश्चन से ही फाइनली जो हमारी स्टडी की व्हाट टू से वर्किंग हाइपोथेसिस होती है, means what we trying to see or what we trying to establish the relationship between two things, वो आती है. Working hypothesis is the most important thing. अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम से, चलते चलते प्रॉब्लम से टॉपिक बना, टॉपिक से ऑब्जेक्टिव बने, फिर रिसर्च क्वेश्चन बना, एंड रिसर्च क्वेश्चन से हाइपोथेसिस बनी. अगर आप हाइपोथेसिस स्टेज तक पहुंच गए हैं, दैट मीन्स यू हैव बेसिकली डन योर जॉब. और अगर आपकी हाइपोथेसिस स्टेज में वहां पे अप्रूव हो जाती है एसआरसी से वो या आरडीसी से, एंड दे पुट अ स्टैम्प कि ओके आपकी हाइपोथेसिस परफेक्ट है, ऑब्जेक्टिव भी परफेक्ट है, अब आप अपना काम इसको डिटेल में करना शुरू करिए. अगर आप यहां तक पहुंच गए तो देन यू हैव डन योर जॉब. और हाइपोथेसिस व्हेन इट कम्स टू गेटिंग योर पेपर रिव्यूड, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जो कमेंट्स आजकल पिछले 2-3 सालों से आ रहे हैं, वो पहले क्या होता था, जब मैं स्टार्टिंग में पेपर लिखता था तो देयर वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि जो रिव्यूअर्स होते थे वो हाइपोथेसिस डेवलपमेंट पे मेरी क्वेश्चन उठा देते थे. वो कहते थे ये हाइपोथेसिस कैसे डेवलप कर दिया आपने, मतलब दिस डजंट सीम अलाइंड विद योर पेपर. मेरा जो फर्स्ट पेपर था उसका यही कमेंट था कि द हाइपोथेसिस डोंट सीम अलाइंड विद द पेपर. क्यों? क्योंकि वो पहली बार लिख रहे थे और इतना मतलब ओरिएंटेशन नहीं होता है आपका कि आप लुक अहेड कर सको. तो वो क्या हुआ था कि टॉपिक से वो थोड़ी सी ज्यादा वो ब्रॉड हो गई थी, उसमें एक हाइपोथेसिस मैंने छोड़ दिया था कि एक एक्स्ट्रा डाल देते हैं थोड़ा और अच्छा लगेगा देखने में. नहीं, वो नहीं डालना था. तो उसकी वजह से उसने वो कमेंट डाल दिया था कि हाइपोथेसिस डजंट सीम टू बी अलाइंड विद द पेपर, रिजेक्ट. फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो गया वो पेपर. दैट आई सेंड टू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंज्यूमर स्टडीज. तो वो ही चीज होती है कि जब आप हाइपोथेसिस जब आप पेपर में बनाते हो तो हाइपोथेसिस जो आपके ऑब्जेक्ट टॉपिक प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, वो यही फ्लो देखते हैं जो रिव्यूअर्स होते हैं कि क्या ये फ्लो बन रहा है इस पेपर को रिव्यू करते समय, कि जो प्रॉब्लम है उससे इसका टॉपिक बना है, फिर इसके ऑब्जेक्टिव बने हैं, फिर इसके रिसर्च क्वेश्चन आए और फाइनली हाइपोथेसिस है, क्या ये फ्लो पूरा का पूरा बन रहा है. जब ये फ्लो बन जाता है ना तो आप इसको खुद ही पढ़ोगे, वो बहुत पंची लगता है पढ़ने में. विद रिगार्ड टू दिस पेपर ऑल्सो, इस पेपर का भी जो ये फर्स्ट सेक्शन था पूरा इंट्रोडक्शन, वेयर आई बेसिकली मैरिड दिस 3 पैराडाइम्स, इसका जो ये अभी आप सेक्शन देख रहे हो ये ऐसे नहीं दिखता था. ये रिविजन्स के बाद अब इतना टाइट एक पेज बन चुका है जिसमें हमने इस फील्ड के बारे में बताया, क्या पोटेंशियल अभी इसमें वो है, स्कोप है काम करने का एंड एवरीथिंग. ये इतना टाइट तब नहीं था. ये इसके जो द एडिटर ऑफ दिस जर्नल एट दैट टाइम वाज डॉक्टर क्रिस्टीना गिलमेरेज. शी इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन, वो एडिटर इन चीफ है शायद अभी भी इसके. उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया था इसका इंट्रोडक्शन लिखने में, और उन्हीं की ये बताई हुई चीज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये अभी, की प्रॉब्लम टॉपिक ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस. उन्होंने मेरे को यही बताया था कि सीक्रेट यही है इन जर्नल्स में पेपर लिखने का, कि अगर ये फ्लो दिख रहा है एडिटर को और रिव्यूअर को आपके जो आपने पेपर सबमिट किया है, तो कहते हैं यू विल नेवर फेल. और उनका मैं थैंकफुल हूं, उन्होंने मेरे को काफी मदद करी थी इस पेपर को लिखने में और इसका ये इंट्रोडक्शन टाइट करने में. एंड द मोमेंट आई डिड दिस, मैंने उनको भेजा, उसके बाद छोटे मोटे करेक्शंस थे. यू कैन सी हाउ मेनी टाइम्स इट गॉट रिवाइज्ड, got submitted in 2019, then revised. कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है मंथ के अंदर. जो सबसे बड़ा टाइम था वो यहीं पे लगा था 17 सितंबर से 4 फरवरी आने में, क्योंकि आई सबमिटेड इट ऑन 17 सितंबर, देन आई वेंट ऑन वेकेशन. उसके बाद मैं वापस आया तो द रिव्यू केम समवेयर अराउंड 1 दिसंबर 2020, और उसके बाद मैंने 4 फरवरी को अपना रिप्लाई इसका जो था, जो कि उन्होंने मेरे से ये करवाया था पूरा, इस पूरे पैराग्राफ को टाइट करवाना कि ये फ्लो मेंटेन हो उसमें, वो मैंने उस टाइम में पूरा का पूरा किया था. उसके बाद जस्ट माइनर जस्ट करेक्शंस थे, थोड़े सा टेबल्स को सही करना था, कुछ क्रिटिकल वैल्यूज के हमने साइटेशंस नहीं दिए थे. दिस पेपर एक्चुअली एम्प्लॉयड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, और इसको हमने इम्प्लीमेंट, दिस वाज द फ्रेमवर्क दैट वी टेस्टेड, एंड दीज आर ऑल द hypothesis numbers you can see. These are these paths show all the hypotheses which are going from one factor to the other: agility affecting operational performance, lean affecting operational performance directly, and then through indirectly also, means agility going to sustainability performance and then going to operational performance, or it is going to orientation, then basic practices, and then operational performance. So this is called indirect effect or mediation effect. तो ये भी टेस्ट करना था, एंड इसके लिए पूरा का पूरा एक R सॉफ्टवेयर में जो पैकेज आता है लवान,
आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसकी मदद से पूरा कोड लिख के इसको हम लोगों ने एनालाइज किया था। एंड दिस इज द एनालिसिस, दिस इज द कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। तो यही सब जो क्रिटिकल वैल्यूज थी, जैसे ये नीचे कट ऑफ वैल्यूज जो होती हैं, तो वो थोड़ी सी रह गई थी, थोड़ा प्रोफेशनल टच नहीं आ पा रहा था, तो उन्होंने बहुत गाइड किया, उन्होंने कहा ये सब डाल दो इसमें, तो करा हम लोगों ने एंड इट गॉट पब्लिश्ड। तो उनका मेरा बस यही टीचिंग थी कि दिस वर्क फ्लो, प्रॉब्लम, टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च, क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस, ये बहुत ही टाइटली एक चेन की तरह होना चाहिए। मतलब कि इसको आप खींचो तो वो टूटे ना। अगर वो टूट रही है तो एज आई शोड यू, टोल्ड यू अर्लियर कि मेरा वो पेपर था पहले, वो रिजेक्ट हो गया था एकदम से, तो वो होता ही है। सो आई थिंक this is it with regards to identification of research topic. And one more thing I like to say, that whatever topic that you are choosing, okay, उसको जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मींस द थिंग इज कि रिसर्च जो होती है वो सेकंड ईयर के एंड से या सेकंड ईयर के मिड से सीरियस होनी शुरू होती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कोर्स वर्क ही होता है एंड इट टेक्स टाइम टू गेट एडजस्टेड टू द शेड्यूल एंड योर सुपरवाइजर एंड एवरीथिंग। तो जरूरी नहीं कि आप लिटरेचर रिव्यू करके उसे वहीं पे छोड़ दें। लिटरेचर रिव्यू जब तक आप फाइनल एग्जीक्यूशन स्टेज, मतलब उसको एग्जीक्यूशन मींस कोई एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट आप सेटअप करने जा रहे हैं या स्टार्ट हो चुका है उससे पहले, या सर्वे है या उससे स्टार्ट हो रहा है पहले, ऑलवेज कीप revisiting this literature review step, keep revisiting it। क्या पता कुछ इतना बढ़िया नया आपको हाथ लगे जो कि आप लास्ट मोमेंट पे अपनी स्टडी में इनकॉर्पोरेट कर लो, जिसकी वजह से आपकी स्टडी बेटर हो जाए। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मेथड्स ऑल्सो। ओके, सो थ्योरी और मेथड्स दोनों के टर्म से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अभी तक मैंने थोड़ी सी बात रिसर्च टॉपिक की यही करी थी कि फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थ्योरी, कि आप जो भी टॉपिक चूज कर रहे हो उसमें आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। डिटेल लिटरेचर रिव्यू और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आप टॉपिक चूज कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। मींस कि हाउ विल यू गेट द डेटा, हाउ विल यू एनालाइज द डेटा, हाउ विल यू इंटरप्रेट द डेटा, बिकॉज देयर इज टू broad school of thoughts when it comes to arts and social science, that is qualitative and quantitative research. I am from quantitative research, that is strictly statistics and data analytics background, so मुझे qualitative का इतना नहीं पता है, but वही अप्रोचेस हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि मेरे जो प्रोफेसर, मेरे सुपरवाइजर हैं प्रोफेसर रजत अग्रवाल फ्रॉम आईआईटी रुड़की, ही इज आल्सो अ क्वांटिटेटिव मैन, बट उनके कोलीग हैं डॉक्टर विनय शर्मा, ही इज अ स्ट्रिक्टली क्वालिटेटिव पर्सन, मतलब वो स्टैटिस्टिक्स को हाथ तक नहीं लगाते हैं। तो कितनी तो डिफरेंट अप्रोचेस हैं चीजों को अप्रोच करने की। हाउएवर वो मुझे, मैं क्योंकि सिंस मेरा ओरिएंटेशन क्वालिटेटिव की तरफ नहीं था, तो मैं कभी उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ कि मैं उनको अपना सुपरवाइजर बनाने के लिए उनको अप्रोच करूं या उनके अंडर पीएचडी करूं। सो मेरा क्वांटिटेटिव ही एप्टीट्यूड था, मेरा क्वांटिटेटिव की तरफ ही ज्यादा वो था लगाव, तो मैंने इसलिए स्टैटिस्टिक्स चूज किया, प्रोफेसर रजत के साथ प्रेफर किया करना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उस टॉपिक को बेटर मेजर करने के लिए क्या अप्रोचेस है, क्या क्वांटिटेटिव अप्रोच बेटर है कि क्वालिटेटिव अप्रोच बेटर है। वैसे बेटर तो कोई भी नहीं है, देखना आपको यह है कि आपका एप्टीट्यूड किस में है। क्या आप लोगों से बैठ के घंटों इंटरव्यूज करके ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं, and then you have the ability to apply grounded theory or something like that to codify that information and then take insights from it, or are you some person who is afraid of numbers and cannot do statistics। तो अपनी limitations को भी ध्यान में रखते हुए लिटरेचर रिव्यूज में ये चीज जरूर देख लीजिएगा कि इस जो टॉपिक को रिसर्च करने के लिए आपको वो चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और टूल्स चाहिए, वो आपको सूट करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसका आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं फ्रॉम अ पब्लिकेशन दैट गॉट पब्लिश्ड लास्ट ईयर। सो if you can see this paper, the title reads Arresting Fake News Sharing on Social Media, Theory of Plant Behavior Approach। This paper I basically co-authored, and in co-authoring I was actually at the back end of this paper doing the statistical analysis and also giving oversight to the methodological aspects of this paper। So इस paper में क्या था, when these two scholars Pundir and Binodni Devi, when they approached me, they were saying ki sir, we are trying to work on the phenomenon of fake news on social media apps। I said yeah, that's a very nice topic, and it is also relevant for the companies also in social media companies, because इन लोगों को बहुत नुकसान होता है फेक न्यूज की वजह से, सरकार भी फाइन लगा देती है, यूरोपियन यूनियन तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो वो सब चीजें थी। तो अब इन लोगों ने मेरे से कहा कि इसमें सर करना क्या चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा मतलब पढ़ता रहता हूँ मैं, तो मैंने पूछा इन लोगों से कि आप लोग क्या कर सकते हो।
तो उन्होंने कहा सर हम तो देखिए मैनेजमेंट और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं पूरी तरीके से, मतलब इट इज अ मैनेजरियल पर्सपेक्टिव। तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव तो देखिए पूरी तरह से रूल आउट हो गया। अब टेक्निकल पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है फेक न्यूज शेयरिंग में, कि आप एल्गोरिदम्स डेवलप करने पर रिसर्च करें जो कि फेक न्यूज को स्पॉट और वेरीफाई ऑटोमेटिकली कर सकें, उसको लेबल कर सकें, जैसे कि फेसबुक करने की कोशिश कर रहा है आजकल। उस तरह का काम होता अगर टेक्निकल होता तो वो तो पूरी तरीके से रूल आउट हो गया, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया। तो फिर हमने थोड़ा लिटरेचर सर्वे किया, कि मैंने उनसे कहा कि अब आप ऐसा करो, लिटरेचर सर्वे हम दोबारा से करते हैं, एंड नाउ लेट अस रूल आउट ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। हम देखते हैं कि क्या हम कोई बिहेवियरल प्रोफाइलिंग कर सकते हैं जिसमें हम और आप एक्सपर्ट हैं। सो व्हाट वी डिड इज, अब आप इसके थ्योरी इस पेपर के टाइटल में पढ़ो, अ थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर अप्रोच। ये थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर अप्रोच बाद में इंक्लूड हुआ। पहले उन्होंने सिनॉप्सिस में से ये लिखा था, फेक न्यूज शेयरिंग इन सोशल मीडिया एक्सप्लोरिंग द फिनोमेना। थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर हमने डाला क्योंकि इसको टेक्निकली जो एक्सप्लोर कर सकते थे हम पॉसिबली, वो यही था कि हम लोगों का बिहेवियर स्टडी करें थ्रू सेल्फ रिपोर्टेड मेजर्स और थ्रू वेरी वेल डिफाइंड बिहेवियरल थ्योरीज, और उससे कोरिलेट करने की कोशिश करें कि कौन ज्यादा ससेप्टेबल है फेक न्यूज पे बिलीव करने के लिए और उसको शेयर करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि हम फेक न्यूज को स्टडी करने के लिए और भी लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स छाप रहे हैं। यहां से भी आईटी से भी बहुत लोग पेपर्स लिख रहे हैं इस चीज पे कि बॉट्स और मशीन लर्निंग यूज करके फेक न्यूज को स्पॉट करना। बट सिंस वो पॉसिबल नहीं था इन लोगों के साथ, बिकॉज दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और वो फील्ड भी वारंट नहीं करती मैनेजमेंट की। वी आर इन सोशल साइंस, हम अगर प्रोग्रामिंग करेंगे तो और लोग क्या करेंगे। तो वही चीज थी। तो दैट्स व्हाई वी टर्न दिस इनटू दिस टॉपिक, अ थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर अप्रोच। एंड थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर सब आप लोग में से काफी लोग पढ़ चुके होंगे, वही जो मैंने आपको बताया था। तो उसी से हमने इस पूरे को डेवलप किया। इसमें भी हमने वही चीज मचाया था, गैप आइडेंटिफिकेशन भी ऑल्सो गेव इट वेरी मच। अभी भी कुछ एक जस्ट हम लोग के पेपर से जस्ट 2 साल पहले ये एक स्टडी आई थी, तलवार एट ऑल 2019। इट वाज पब्लिश्ड इन द प्रेस्टिजियस Journal of Retailing and Consumer Services. It is published by Elsewhere, very prestigious journal for marketing people. तो इन्होंने क्या किया था, कुछ फैक्टर्स लिए थे, लाइक सोशल मीडिया फटीक, सोशल कंपैरिजन एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब ये कुछ बहुत ही रैंडम फैक्टर्स हैं। तो हमने ये फैक्टर्स तो लिए और उसमें फिर बता दिया इसके रिसर्च गैप में कि अपार्ट फ्रॉम टेकिंग दीज फैक्टर्स वी आर आल्सो एडिंग थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, जो कि खुद में एक बहुत ही एक्सटेंसिव थ्योरी है लोगों को प्रोफाइल उन बिहेवियर्स के हिसाब से उनको प्रोफाइल करने में और उनका बिहेवियर प्रेडिक्ट करने के लिए। सो ये करते हुए हमने पूरा इसका ये गैप आइडेंटिफिकेशन वाला सेक्शन बनाया। एंड उसके बाद वी स्टार्टेड द लिटरेचर रिव्यू, सारे एक एक टर्म्स डिफाइन करने शुरू करे। और जो फाइनल इसका फ्रेमवर्क था, रिसर्च फ्रेमवर्क, जो कि वी टेस्टेड यूजिंग पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, वो ये था। ये टीपीबी, ये थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर के कंस्ट्रक्ट्स थे। ये अवेयरनेस एंड नॉलेज मैंने खुद डाला था अपना, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और ये फोमो एंड सैडिज्म, ये हमने तलवार एट ऑल 2019 उनकी स्टडी से लिए थे। एंड देन वी वर having this target variable intention to verify news before sharing, and we got a very decent R square for a behavioral study, 14%, not great not terrible. So वो करते हुए हमने फिर देखिए इस टॉपिक को, मतलब ये टॉपिक एक्चुअली जब ये लोग मेरे पास आए थे तो ऐसे इनसे डिस्कशन हो रहा था, तो दे वर सेइंग कि मतलब डेड एंड हो गया, मतलब थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया हमारा, 1-1.5 साल। बट आई सेड कि टॉपिक बहुत नॉवेल है, अगर हम इसको डिफरेंट तरीके से अप्रोच करें तो व्हाट इट्स लाइक। एंड लोगों ने लिटरेचर रिव्यू किया एंड लकीली वी गॉट, मेरे को भी थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर का थोड़ा एक्सपीरियंस